Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor via Newton School, and in this video, that is day 28 of this playlist dynamic programming from scratch, we are going to learn optimized memoization of egg dropping problem. ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखी थी, एग ड्रॉपिंग प्रॉब्लम. फाइन. उसका हमने सबसे मेन चीज़ जो एग ड्रॉपिंग प्रॉब्लम में है उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्योंकि बहुत लोग उसी में कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, तो मैंने अपना बेस्ट दिया था आपको ताकि उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में तुम्हें कोई भी डाउट ना रह जाए. ठीक है, मैं इस वीडियो में भी एक बार उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फिर से डिस्कस कर लूँगा ब्रीफ में, सो दैट तुम्हें और ज़्यादा क्लियर हो जाए. और उसके बाद हमने उसका क्या देखा था, उसका रिकर्जन. ठीक है, अब इस वीडियो में हम उसी रिकर्जन से कैसे उसको मेमोजाइज करके उसका ऑप्टिमाइजेशन करके कैसे हम उसको डीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बॉटम अप डीपी, ये देखने वाले हैं. ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट्स जस्ट सी व्हाट इज न्यूटन स्कूल. So as we all know that Newton School is an e-learning platform which have different programs especially designed for you. Their first program is pay after placement program, under which they have full stack development courses for you. Like they will teach you for 6 months and they will make you a full stack developer. And not only this, after that they will also get you placed in these different companies which they have tie up with, like Google, ThoughtWorks, Zomato, Xiaomi, Byju's and Academy. Okay, so they will teach you for 6 months, they will make you a full stack developer, and after that they will also get you placed in these companies, and for minimum CTC of 5 lakh. Okay, best thing about this program is you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of these companies. Okay, so like you can see here, application for full stack development course October batch is right now open. You can apply for that. Okay, so this all comes under pay after placement program. So if you want to know more about it, just apply now for free right now. Okay, and pay only after when you get placed in these companies. Second program they have for you is Launchpad initiative, under which they are providing you everything for free. Okay, like if you are a beginner or if you are a learner and you want to learn things for free, okay, so you can just go to Newton School Launchpad initiative and you can opt any course. You will also get certificate. After completion of these courses you can sign up or log in for free and begin any course without giving any money. Okay, so just use this opportunity and come to Newton School Launchpad and start learning for free. At the end, if you haven't subscribed this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, just go to YouTube and subscribe this YouTube channel where we are posting regular videos so that you can get this content over and over again. Okay, and absolutely for free. So let's just start with today's video, and in today's video we are going to learn egg dropping problem optimized memoization. Okay, but before that we are going to focus briefly on problem statement again. तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी नहीं देखी है तो दैट वीडियो इज़ ऑब्वियसली अ प्री रिक्विजिट, बिकॉज इन दिस वीडियो हम उसी के प्रीवियस वीडियो के रिकर्जन को ही कैसे हम उसको मेमोजाइज करके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और डीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं वो देखने वाले हैं. ठीक है, मैं ब्रीफ में प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूँ. वी हैव सम नंबर ऑफ एक्स, सपोज ई नंबर ऑफ एक्स. okay, second thing we have is suppose we have k number of floors in a building. We simply need to tell what are the minimum number of operations we will be needing to get to know what is the threshold floor of this building, or you can say what is the first floor after dropping the egg from that floor egg is going to break. okay, so suppose ये तुम्हारा एक बिल्डिंग है, उसमें एक के फ्लोर्स हैं. ओके, तुमने ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट किया, तुम्हारे पास ई एक्स थे, तुमने क्या किया, यहाँ से एक ड्रॉप किया, अभी नहीं टूटा, यहाँ से ड्रॉप किया, अभी नहीं टूटा, यहाँ से ड्रॉप किया, अभी नहीं टूटा, यहाँ से जैसे ही तुमने ड्रॉप किया ये एग टूट गया. ओके, सो यू कैन से दैट दिस फ्लोर इज योर थ्रेशोल्ड फ्लोर और दिस इज द रिक्वायर्ड फ्लोर. ओके, बट ये करने में तुम्हें नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लगे, 4 नंबर ऑफ ऑपरेशंस. ओके, तो तुम्हें ये 4 नंबर ऑफ ऑपरेशंस की जगह क्या करना है, एग्जैक्टली मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस फाइंड आउट करना है. ठीक है, अगर सपोज इन केस मेरे पास नंबर ऑफ एक्स एक ही है, ठीक है, अगर ई की वैल्यू 1 है तो इन वर्स्ट केस मेरा आंसर कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू
के एग्जैक्टली। सपोज़ मैंने यहाँ से ड्रॉप करना शुरू किया और जाते जाते ये मेरा सपोज़ इन केस क्रिटिकल फ्लोर है या थ्रेशोल्ड फ्लोर है ना, तो मुझे सारे के सारे फ्लोर्स वन बाय वन चेक करने पड़ेंगे सिंस आई हैव ओनली वन एग। बट इन केस मेरे पास दो एग्स हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं सारे के सारे फ्लोर्स चेक करूं। मैं के से कम ऑपरेशंस में भी अपने मिनिमम नंबर थ्रेशोल्ड फ्लोर का पता लगा सकता हूँ के से कम ऑपरेशंस में भी। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। मैं वन की जगह डायरेक्टली सेकंड फ्लोर से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। सेकंड फ्लोर से मैंने स्टार्ट किया अगर, तो यहाँ से मैंने जैसे ही ड्रॉप किया है तो एक केस हो सकता है ये टूट जाए, ठीक है, और दूसरा केस, यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, ये टूट जाए या फिर ये ना टूटे, ये वैसा ही रहे, ठीक है। अगर ये नहीं टूटा तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू चेक फर्दर फ्लोर। इन केस अगर ये टूट गया देन आई विल बी हैविंग वन मोर एग, ओके, आई विल बी हैविंग वन मोर एग, और मैं फिर उस एग से यहाँ पे गिरा के चेक कर सकता हूँ, ओके। ये तो मैंने जब सेकेंड फ्लोर से स्टार्ट किया। आई कैन स्टार्ट फ्रॉम थर्ड फ्लोर ऑल्सो। सपोज आई स्टार्टेड फ्रॉम थर्ड फ्लोर। अब अगेन मेरे पास दो केसेस हैं, एक जब वो टूट गया, ठीक है, एक जब वो नहीं टूटा। अगर वो नहीं टूटा आई विल बी चेकिंग फर्दर फ्लोर्स इन द अपवर्ड्स डायरेक्शन। अगर वो टूट गया देन मेरे पास जो नंबर ऑफ एक्स रह जाएंगे वो e-1 रह जाएंगे। फिर क्या मैं इस एक एक की हेल्प से, e इज इक्वल्स टू 1 रह गया, एक एक की हेल्प से मेरे पास रिमेनिंग नंबर ऑफ फ्लोर्स ये हैं, क्या मैं पता लगा सकता हूँ कि मेरा थ्रेशोल्ड फ्लोर कौन सा है? ऑब्वियसली यस। मैं यहाँ से चेक करूँगा सेकेंड फ्लोर से ड्रॉप करके। अगर मेरा एग टूट गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या मैं कह सकता हूँ कि या तो ये मेरा थ्रेशोल्ड फ्लोर हो सकता है या फिर ये, यहाँ पे मेरा केस फंसेगा, ठीक है। बट अगर मेरा फ्लोर इस यहाँ से फेंकने में अगर मेरा एग नहीं टूटा तो ऑब्वियसली दिस इज़ गोइंग टू बी माई थ्रेशोल्ड फ्लोर, ठीक है। तो मेरे कहने का सिर्फ एक कंक्लूजन था दैट अगर मेरे पास नंबर ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, अगर मेरे पास नंबर ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 है देन ऑब्वियसली आई कैन रिड्यूस नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू नो द थ्रेशोल्ड फ्लोर। इन विच वे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। अगर नंबर ऑफ ऑपरेशंस, अगर नंबर ऑफ एक्स जो है वो 1 है तो मैं उसको मिनिमाइज़ नहीं कर सकता, मुझे वर्स्ट केस में टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस के लगेंगे ही लगेंगे। बट अगर ग्रेटर देन 1 है, ई इज़ ग्रेटर देन 1, उस केस में मैं मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर सकता हूँ, ठीक है, फाइन। अब ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, सिंपली रिकर्जन का स्टेप्स क्या बताए थे, ये वो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। मैंने बोला था कि अगर e इज़ इक्वल्स टू 1 है या नंबर ऑफ फ्लोर्स ही मेरे पास 1 है या नंबर ऑफ फ्लोर्स 0 हैं, कुछ ऐसे मैंने बेस केसेस रिकर्जन में ऑब्वियसली बताए थे, वो हम दोबारा डिस्कस करने नहीं वाले, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बेस केसेस निकालना बहुत बार बता दिया रिकर्जन के। हम सिंपली यहाँ पे जो रिकर्जन स्टेप है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये मेरी बिल्डिंग है जिसमें के फ्लोर्स हैं राइट नाउ, ठीक। मैंने बोला कि मेरे पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। मैं अगर करंट रिकर्जन स्टेट लिख रहा हूँ, सपोज मैं इस फ्लोर में हूँ या फिर आई से मैं इस फ्लोर में हूँ, मैं यहाँ से एक ड्रॉप करने वाला हूँ, ठीक है, और इस फ्लोर की जो वैल्यू है वो से के डैश है फॉर नाउ, ओके। अब मैं बोलूँगा कि यहाँ से जब भी मैं एक ड्रॉप करूँगा मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, P1 P2। ये पॉसिबिलिटी है कि मेरा एग जो है वो ब्रेक हो गया। अगर मेरा एग यहाँ से डालने में ब्रेक हो गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली आई विल बी सर्चिंग फॉर फ्लोर्स बिलो दिस फ्लोर, क्योंकि ये मेरा थ्रेशोल्ड फ्लोर हो भी सकता है और थ्रेशोल्ड फ्लोर नहीं भी हो सकता है, इसके नीचे भी कहीं एक थ्रेशोल्ड फ्लोर हो सकता है, इट इज़ ऑब्वियस है ना। दैट्स वाई आई विल बी चेकिंग दिस के डैश -1 फ्लोर्स, ठीक है। और एक एग मेरा यहाँ पे ड्रॉप हो गया, तो मैं बोलूँगा कि अब मेरे पास रिमेनिंग नंबर ऑफ एक्स e-1 है एंड नंबर ऑफ फ्लोर्स जो मुझे चेक करने हैं वो कितने बचे, सिंपली के डैश -1। तो मेरा रिकर्जन केस या फिर रिकर्जन फॉर नाउ इस सब प्रॉब्लम का ये हो गया, ठीक है। अब मैं एक केस करता हूँ कि जब मेरा एग नहीं ड्रॉप हुआ, उस केस में मेरी वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। अगर मेरा एग ड्रॉप नहीं हुआ तो ऑब्वियसली जो मेरा थ्रेशोल्ड फ्लोर है वो कहाँ पे है, इन ऊपर वाले फ्लोर्स में से कहीं पे है। इन ऊपर वाले फ्लोर्स में कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स बचे हैं, दैट इज़ के माइनस के डैश, ठीक है। और मेरा एग जब ड्रॉप होके टूटा नहीं है तो आई हैव एग्जैक्टली ई एक्स ऑलरेडी। तो अब मुझे के माइनस के डैश फ्लोर्स में क्या चेक करना है, ई एक्स का यूज़ करके
कौन सा फ्लोर पे एग टूट रहा है ये निकालना है, ठीक है। तो ये मेरी दो सब प्रॉब्लम्स थी, P1 और P2, और ये उनके रिकर्जन स्टेट्स थे यू कैन से, ठीक है, नंबर ऑफ एक्स और सिंपली नंबर ऑफ फ्लोर्स जिनमें मुझे अभी चेक करना है। और मेरी जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या होगी, सिंपली मेरे पास ई नंबर ऑफ एक्स है, टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स जिनमें मुझे चेक करना है वो क्या है के, और ये एट द एंड मुझे क्या देगा, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो कि मुझे लगेंगे इस फ्लोर में, जो भी मेरा थ्रेशोल्ड फ्लोर है वो पता लगाने के लिए, ठीक है। तो ये मेरा, आई होप मैंने रिकर्जन पूरा क्लियर कर दिया आपको। अब मैं रिकर्जन का कोड दिखा देता हूँ और उससे हम कैसे उसको मेमोराइजेशन बनाने वाले हैं वो देख लेते हैं सिंपली, ठीक है। तो ये रहा रिकर्जन का कोड, मैंने ऑलरेडी सब बता दिया। मेरे पास रिकर्जन के कोड में दो स्टेट्स रहेंगी, दैट इज़ n नंबर ऑफ x एंड k नंबर ऑफ फ्लोर्स, ठीक है। ये मेरा बेस केस, अगर मेरे बिल्डिंग में 0 या 1 ही फ्लोर है तो सिंपली कितने ऑपरेशन लगेंगे, एक या 0 ऑपरेशन। अगर 0 फ्लोर है तो 0 ऑपरेशन, मुझे पता ही नहीं करना। 1 फ्लोर है तो एक ऑपरेशन, सिंपल। इफ़ n इज इक्वल्स टू 1 है, दैट इज नंबर ऑफ x मेरे पास सिंपली एक है, तो वर्स्ट केस का आंसर क्या हो जाएगा, मुझे सारे फ्लोर्स में जाके चेक करना पड़ेगा स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर। दैट्स वाई टोटल नंबर ऑफ मिनिमम ऑपरेशंस इन वर्स्ट केस विल बी k। एट द एंड मैंने अपना जो आंसर है उसको इंटीजर मैक्स से कर लिया इनिशलाइज, और फिर सिंपली फर्स्ट फ्लोर से लास्ट फ्लोर तक मैंने सारी कंडीशंस पॉसिबल एज्यूम कर ली, ठीक है। अब मैं करेंट स्टेट का जो भी वर्स्ट केस हो सकता है, ठीक है, तो दो पॉसिबल सब केसेस मेरे पास क्या कहते हैं, P1 और P2, जब मेरा एग ड्रॉप हो गया और जब मेरा एग ड्रॉप नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो P1 का सॉल्यूशन क्या है, जब मेरा एग ड्रॉप हो गया तो मेरे पास नंबर ऑफ एक्स कितने बचे, E-1 और यू कैन से N-1। नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने बचे, सिंपली X-1, और यू कैन सिंपली से मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स यहाँ पे कितने थे, k थे, तो यहाँ पे तुम 1 सेकेंड, ओके। तो जैसे कि नंबर ऑफ फ्लोर्स मेरे यहाँ पे कितने हो गए x, तो नंबर ऑफ फ्लोर्स अब जो मुझे बाकी चेक करने हैं वो कितने हो जाएंगे, सिंपली दिस इज समथिंग लाइक E-1 एंड k-1, यहाँ पे k डैश की वैल्यू x है राइट नाउ और e की वैल्यू n है, ठीक है। डोंट गेट कन्फ्यूज अबाउट दिस। P2 की वैल्यू क्या है, सिंपली जब मुझे ऊपर वाले फ्लोर्स में रिमेनिंग चेक करना है तो नंबर ऑफ x सेम रहेंगे और फ्लोर्स कितने बच जाएंगे, k-k और x यू कैन से, ठीक है। तो ये मेरी दो सब प्रॉब्लम्स थी, और एट द एंड मैं अपना जो आंसर है उसको किससे अपडेट करता जाऊँगा, मिनिमम वैल्यू से, ठीक है, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस चाहिए मुझे वर्स्ट केस के। दैट्स वाई मैं दोनों प्रॉब्लम्स में से P1 और P2 में से उनका मैक्सिमम ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे वर्स्ट केस का आंसर चाहिए, ठीक है। सो एट द एंड मैंने मिनिमम +1 क्यों किया था, ये भी मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया आपको, क्योंकि सपोज मैं ith फ्लोर के बारे में अभी बात कर रहा हूँ, है ना, बट ith फ्लोर में मैंने एक और ऑपरेशन किया है जहाँ पे मैंने एग ड्रॉप किया है, ठीक है। दैट्स वाई +1 फॉर दिस ऑपरेशन। तो अब मुझे इसी रिकर्जन के सॉल्यूशन को मेमोजाइज करना है, तो मैंने मेमोजाइज करने के लिए क्या बताया था, मुझे सिंपली एक कंटेनर चाहिए होता है। उस कंटेनर की डायमेंशंस हम कैसे डिसाइड करते हैं ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जितनी भी चेंजिंग स्टेट्स होती हैं मेरे रिकर्जन में, मैं उन सबको डायमेंशंस में ले लेता हूँ। तो नंबर ऑफ एक्स भी चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ फ्लोर्स भी चेंज हो रहे हैं। तुम सिंपली नीचे आओ अगर, ठीक है, अगर तुम नीचे आओगे तो तुम्हें रिकर्जन जहाँ पे भी कॉल कर रहे हो वहाँ पे देखो क्या नंबर ऑफ एक्स चेंज हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं। नंबर ऑफ फ्लोर्स चेंज हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं। दैट्स वाई, ठीक। अब मैंने बोला था इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, जो भी अनपॉसिबल या फिर इम्पॉसिबल आंसर है तो -1 विल बी द बेस्ट थिंग, क्योंकि -1 क्या एक पॉसिबल आंसर है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस की वैल्यू -1 हो सकती है, ऑब्वियसली नॉट। अब तुम्हें सिंपली क्या करना है, जब भी तुम कोई नया आंसर कंप्यूट कर रहे हो उसको स्टोर करो, और कोई भी नया आंसर कंप्यूट करने से पहले तुम चेक कर लो क्या वो तुम आंसर निकाल तो नहीं चुके, ठीक है। तो रिटर्न करने से पहले उसको स्टोर कर लो, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। तुम्हें इसमें कुछ भी करना नहीं है, ठीक है। अब तुम्हें नीचे क्या करने वाले हो तुम, एग्जैक्टली सिंपल सी चीज़ देखो, तुम n और k का आंसर कंप्यूट कर रहे हो राइट नाउ, ठीक है, n और k का। तो तुम सिंपली यहाँ नीचे चेक करो, इफ़ dp ऑफ n and k does not is equals to -1, simply return it from here,
ओके। और अगर -1 नहीं है तो तुम्हें नीचे जाके क्या स्टोर करना है, सिंपली ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे आके dp ऑफ n और k में ये वैल्यू स्टोर कर दो और उसको यहीं से रिटर्न भी कर दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया कहीं ना कहीं मेमोराइजेशन। आई होप ये सारा का सारा सही है, ठीक है, कोई भी मुझसे सिली मिस्टेक नहीं हुई है। अब इसमें मैं बोल रहा था कि ये ऑप्टिमाइज्ड मेमोराइजेशन हम करने वाले हैं, बट क्या ये ऑप्टिमाइज्ड है? तुम सिंपली चेक करो, क्या हम हर जगह पे जो भी नई वैल्यू कंप्यूट कर रहे हैं उसको स्टोर कर रहे हैं? ऑब्वियसली नॉट भाई। देखना, यहाँ पे हम जब भी एक ड्रॉप रिकर्जन फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो क्या इसकी वैल्यू हमें स्टोर कर रहे हैं? नहीं, हम तो सीधे फाइनल आंसर स्टोर कर रहे हैं, बट क्या हम इसकी वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं? ऑब्वियसली वाई नॉट, बिकॉज जो एक ड्रॉप प्रॉब्लम है वो एग्जैक्टली हमें क्या दे रही है, करेंट स्टेट n और k के लिए मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन ही दे रही है, ठीक है। तो जब भी मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ एक ड्रॉप रिकर्जन फंक्शन यहाँ पे, तो ये मुझे क्या दे रही है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन ही दे रही है फॉर द स्टेट n-1 एंड x-1। तो मैं इनको भी यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, लेफ्ट इज इक्वल्स टू एग ड्रॉप n-1 एंड x-1। ये तो मैं बाद में कंप्यूट करूँगा। मैं सिंपली सबसे पहले क्या चेक करूँगा, इफ़ dp ऑफ n-1 और x-1 कहीं -1 तो नहीं है। अगर है तो मैं सिंपली क्या कर दूँगा, p1 बनाते हैं इसको और p2 का आंसर भी 0 ले लेते हैं। अगर ये नॉट इक्वल्स टू -1 है तो मैं सिंपली क्या कर दूँगा, p1 इज इक्वल्स टू dp ऑफ, ये मैं ऑप्टिमाइजेशन का तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग में, तो अगर तुमने वहाँ पे देखी है तो तुम्हें ये चीज़ ईजिली समझ में आ रही होगी कि मुझे ये जो दो सब प्रॉब्लम्स हैं मुझे इनका भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना है कंटेनर में सिंपली, ठीक है। और अगेन एल्स अगर मेरे पास dp की वैल्यू अभी नहीं है तो मैं dp में वो वैल्यू स्टोर कर दूँगा। अब कंप्यूट कर लो सेम वैल्यू फॉर n-1 एंड x-1 एंड सेम थिंग गोज फॉर प्रॉब्लम p2। सिंपली P2 मेरी प्रॉब्लम क्या थी, अब यहाँ पे ये देख लेते हैं। P2 प्रॉब्लम क्या थी, k-x वाली चीज़ थी, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ x सेम रहेंगे आई गेस P2 प्रॉब्लम्स में, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, k-x। अगर नहीं है तो P2 में ये चीज़ अब स्टोर कर देंगे हम, नंबर ऑफ x सेम और ये k-x। एल्स में मुझे ये सेम चीज़ कहाँ स्टोर करनी है, k-x और नंबर ऑफ x सेम। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरी P1 और P2 में प्रॉब्लम के आंसर आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट को सिंपली कैसे लिखूँगा, मैक्स ऑफ P1 एंड P2, ठीक है। तो ये रही मेरी थोड़ी फर्दर ऑप्टिमाइजेशन। जब मैंने जो सब प्रॉब्लम्स का आंसर कंप्यूट कर रहा हूँ मैंने उसको भी कंप्यूट कर स्टोर कर लिया है, ठीक है। अब क्या ये ऑप्टिमाइज्ड रिकर्जन मेमोराइजेशन है? येस, दिस इज़ मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड मेमोराइजेशन ऑफ रिकर्जन फंक्शन ऑफ एग ड्रॉपिंग प्रॉब्लम, ठीक है। एंड एट द एंड आई एम रिटर्निंग dp ऑफ n के, जो हमें सिंपली क्या दे देगा, करेंट स्टेट n और k के लिए मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू फाइंड आउट द थ्रेशोल्ड फ्लो, ठीक है। जहाँ पे n जो है मेरे नंबर ऑफ x हैं और k जो है वो मेरा सिंपली नंबर ऑफ फ्लोर्स इन द बिल्डिंग है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैवेंट checked Newton School yet, just go to newtonschool.co and check their pay after placement program, under which they are teaching you for 6 months under full stack development course, and they will make you a full stack developer, and then they will also get you placed in these companies. Second thing, if you haven't checked their launchpad initiative, just go and check their launchpad initiative and get the most out of it for you for free. And at the end, please go and subscribe this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, and like this video also. Thank you guys for watching.